Chairman sir, my colleagues, ladies and gentlemen, the 20 years have gone by. This institution, High Court of Uttarakhand, came into existence. And of course, our bar, as it was then a very young bar, over the time, over the years, it has progressed tremendously. But still, there is some deficiency. And the deficiency was because of the infrastructural facilities, which otherwise would have been available to a high court, highest institution of a state. Therefore, since time limitation is there, I would not say anything much in detail, but as per my understanding and the vision which I visualize if I get the constructive support of all the bar members, I would endeavor myself to provide. First thing was the infrastructural facilities, which is up to the standard of High Court, it's lacking a little bit. In infrastructural facilities, I would not go in details of everything, but say these are some infrastructural facility in each and every institution, including mostly courts, the chambers for the members, the conference rooms for the members, the compatible places for the clients, and the infrastructure for client and advocate relationship. Since I have seen in various other high court and including the apex court, the bar provides to its member those minimum facilities. So my endeavor would be to somehow put my efforts with your constructive support, and all decisions would be taken in the general body meetings. Second, since time constraint is there, I'll just be brief. Second thing is the registry, which is our main job. The all from time to time, whatever the problems which is faced by this community, eating, filing, hearing, so many other things are there, which from time to time one has to face. That problem would also be solved with the suggestion of the general body, and then the office bearer, through office bearer, we will try, since I am of the opinion, these are two sides of a coin, the bench and bar. If a bar is healthy, if a bar is a little bit prestigious, the bench, it also reflects on the bench. So therefore we will try with the consultation with the bench that this facility also, whatever day-to-day problem with the registry is there, we'll try to solve and get your opinion from time to time. And then we'll approach with this suggestions of general body to the honorable courts, honorable Chief Justice and the judges concerned or various committees, and try to resolve those. Third thing, I'll put some emphasis on the welfare schemes. There are courts, like in Delhi, now NCT Delhi, there's already a proposal, they have already acted upon it. Like, our profession is very hard profession, we have to round the clock, we have to do so many things. You have to have a laja with your client, then you have to prepare it, file it, have a laja with the registry, then go before the courts. So many other problems are there. So therefore, and that entire, we are round the clock, except 6-7 hours you sleep in this thing. Otherwise, I keep on telling to my clients that you are sleeping, snoring, but I am reading your brief.
Next day you are sleeping till 8 o'clock, I'm 5 o'clock up. So therefore the third problem, which we would say that this group insurance, so to ensure that every member in situation of some eventuality that he must be secured. I will try to find out some corpus, and so that each and every member is secured to some extent, depending upon the corpus, which you can fetch from various sources. And lastly, since there is already one buzzer is already there, and lastly, over the years, what I feel that the interaction with the pension bar is not proportionate. That proportionality has to be bring in, and that would, for that purpose, as I was proposing, we will create many committees of seniors, juniors, from all startup, all levels of lawyers. We will have different committees for different purposes: debating committee, cultural committee, then the interaction committee. Decision taking will be all in general bodies. So therefore, this is some substance which I propose to do if I get your constructive support, and we all must involve ourselves in bringing up the standard of a high court and lawyer of a high court. We are otherwise very intellectual community, and this institution is above than the government. See the power of the institution, but that power has to be the people, those who are involved in this institution, they have to elicit that power. And that power can be elicited only after once we are unanimously work for the betterment. With these words, I'll conclude my Thank you very much, sir. Now, I would request Mr. Bhaswanan Molaki to please come and address the gathering. आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय सीआरओ महोदय, सीनियर एडवोकेट्स, लेडी एडवोकेट्स और मेरे इस बार के यूथ मेंबर्स, मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं हमारी सीआरओ टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में, कोविड के काल में आप इतने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया का निष्पादन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम जहां तक डेवलपमेंट की बात है, बाढ़ के विकास की बात है, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 20 सालों में बाढ़ में कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। हमारे पूर्व अध्यक्ष बहुत सारे, सभी के काम में, सभी के कार्यकाल में कुछ ना कुछ विकास हुआ। हम लोग पेड़ के नीचे अपनी किताबें, फाइलें रखते थे और वहां से हम चैम्बर्स तक आए। आज हम इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। तो ये विकास है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्षों में कुछ ना कुछ उनके कार्यकाल में हुआ है, तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। और मेरा यह प्रयास रहेगा, अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस विकास की प्रक्रिया को और आगे और तेजी से ले जाऊं। इसके साथ ही जहां तक समस्याओं की बात है, बात आती है समस्या। अब देखना यह है कि वो समस्याएं हैं या वो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। यहां कहा जाता है कि ऊपर चैम्बर्स बिल्डिंग में सफाई नहीं हो रही। आजकल ये स्थिति है, बहुत गंदा है, सफाई नहीं हो रही। तो क्या ये समस्या है? ये दिक्कत है। ये सफाई तो रोज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। ऊपर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये दिक्कत है, रोजमर्रा की दिक्कत है। क्योंकि हम उसे समस्या के तौर पर लेते हैं और एक चुनावी मुद्दा बना देते हैं। कोई मुद्दा नहीं है, ये होना चाहिए, रोज का रोज होना चाहिए। लेडीज कॉमन हॉल, वहां साफ सफाई नहीं होती, ये दिक्कत है जो रोज होनी चाहिए साफ सफाई। जहां तक चैम्बर्स की बात है, चैम्बर्स का निर्माण शुरू हो चुका है, तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके चैम्बर्स का निर्माण हो। और जो पात्र लोग हैं
जो यहाँ के रेगुलर प्रैक्टिशनर लोग हैं, ये नहीं कि बाहर से कुछ लोग आए उनको चैम्बर अलॉट हो गया और यहाँ पे जो युवा अधिवक्ता हैं उनको चैम्बर का अलॉटमेंट नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के युवा अधिवक्ता हैं उनको चैम्बर का अलॉटमेंट हो, और जो योग्य हैं जो यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को नहीं कि अचानक आए और अपनी सीनियरिटी के आधार पर बाहर प्रैक्टिस करना, यहाँ एक चैम्बर अलॉट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। और इस कोरोना काल में हमने बहुत कुछ दिखाया। हमारे एक साथी अधिवक्ता की मृत्यु हुई है, हमारे एक साथी अधिवक्ता उनके बेटे की मृत्यु हुई, और एक हमारे साथी अधिवक्ता मंगल सिंह चौहान काफी बीमार रहे। तो इन सबसे हमें कुछ सीखने को मिला कि हमारी बार में एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अगर कोई बीमार हो तो उसकी कुछ मदद की जा सके। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि होता यह है कि हर बार वादा किया जाता है कि हम एक मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें कोई ना कोई एक निश्चित व्यवस्था करनी ही होगी। या तो हम ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, या हम बार में ऐसी व्यवस्था करें। हमारी बार में व्यवस्था है कि अगर कोई बीमार होता है उसको 40,000 रुपए दे दिए जाते हैं। अगर हम उन्हीं 40,000 हजारों को हम जो यहाँ मीटिंग होती है तो होता यह है कि इंश्योरेंस वाले आते हैं, वो योजना समझाते हैं, वहां 10 आदमी भी नहीं होते और वो योजना जो है खटाई में पड़ जाती है। तो हमारा मानना यह है कि वो पैसा बार से दिया जाना चाहिए और हर व्यक्ति का, हर जितने भी बार के मेंबर हैं उनका ग्रुप मेडिकल बीमा होना ही चाहिए, जिससे कि ये ऐसी समस्याएं जब भी कोरोना काल में जैसा हुआ है, ऐसी कोई मुसीबत आए तो हर अधिवक्ता को एक मदद मिल सके। इसके अलावा आप लोग इस हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष को चुनने जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिए ये आप विचार करेंगे, अपने दिल पर हाथ रख के विचार करेंगे कि अध्यक्ष कैसा चाहिए। क्या आप उसे इजीली अप्रोच कर सकते हैं? क्या आप उससे सीधे सीधे मिल सकते हैं? कभी भी मिल सकते हैं? यह आपको देखना होगा। अगर आप आज की तारीख में अगर आप किसी से मिलने में भी झिझक रहे हैं तो अध्यक्ष बनने के बाद में आप उससे क्या मिल पाएंगे? तो आपको देखना होगा कि आप उसे मिल सकते हैं, उसे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी समस्या उसे खुल के बता सकते हैं नहीं। जहां तक बार और बेंच के संबंधों का सवाल है, मेरा मानना यह है कि बार और बेंच के संबंध कोर्डियल होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, टकराव की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। बार और बेंच के संबंधों में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, और अगर कोई टकराव की स्थिति आती है तो उसे बैठ के समस्या का समाधान हो सकता है। जो वैकल्पिक, अगर कोई आपको विकल्प चुनना है तो बाद में भी चुना जाता है, सीधे सीधे नहीं कि हमने बार से टकराव की स्थिति ली, क्योंकि टकराव की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो स्थापित अधिवक्ता का नहीं होता है, युवा अधिवक्ताओं का होता है। स्थापित अधिवक्ता तो अपना काम कर लेता है, चला लेता है, उसके पास तो जितने मुकदमे उनमें से एक अगर खराब भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन युवा अधिवक्ताओं के बारे में सोचिए जिनके पास में महीने में 1 या 2 मुकदमे आते हैं, वो भी खराब हो जाए उस टकराव की स्थिति में। समस्या जहां तक है तो सबसे ज्यादा समस्या युवा अधिवक्ताओं के साथ में है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। उनके साथ में 2 प्रॉब्लम है। एक पहली प्रॉब्लम यह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और दूसरी है कि जजेज अगर उनके साथ में कभी कोई इस तरीके का व्यवहार करें तो अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तो जजेज भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। और जहां तक फाइनेंशियल कंडीशन की बात है तो मेरा मानना है कि जितने भी ये इस तरीके के हैं, जैसे एमिकस क्यूरी है, लीगल सेल में अपॉइंटमेंट है, ये जो आर्बिट्रेशन या इसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो युवा अधिवक्ताओं के ही होने चाहिए जो नई प्रैक्टिस वाले हैं, जिससे उनको मदद मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Baswanand Moleki. Now, in the seriatim third number, I would call Mr. Dinesh Tyagi for addressing the gathering. मान्य सम्मान्य
महाधिवक्ता, माननीय सम्माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय और सभागार में बैठे समस्त वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे साथी और अनुज साथी, मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और ये सारी समस्याएं हैं। समस्याओं का निवारण और समस्याएं, ये चुनाव के समय पे ही इनका जिक्र होता है, उसके बाद चुनाव हुआ सब अपने अपने घर। मैं कहानी के जरिए आपसे जुड़ना चाहूंगा। दो दोस्त थे, तो वो अपना काम चलाते थे, लकड़ी काटते थे, शहर में जाते थे। जब वो शहर में जाते थे तो एक दिन जब वो शहर में पहुंचे तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा यहाँ का राजा मर गया है, उसका कोई वारिस नहीं है और उस पे बाज था, वो उड़ेगा, जिस पे भी वो बैठ जाएगा वो यहाँ का राजा बन जाएगा। दोनों साथी थे, एक तेज था, वो चालाक था, एक सीधा था। तेज वाले ने कहा कि चलो हम भी खड़े को देख लेते हैं, शायद वो बाज हमारे कंधे बैठ जाए। बाज उड़ा, वो तेज व्यक्ति जो था उसके कंधे पे वो बाज बैठ गया। वो बात बैठ गया। बात बैठने के बाद वो राजा बन गया, साथी चला गया। उसने राजा बनते ही जनता पे जो उसका स्वभाव था वही अत्याचार शुरू किया, क्योंकि स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। जिसका जो स्वभाव होता है वो वही काम करेगा। उसे राजा बना दो, कुछ भी बना दो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जब जनता परेशान हुई, उसके बोले इसका कोई सगा है क्या? हाँ। बोले उस दोस्त को बुलाओ इसके। वो दोस्त आया, उनने कहा भाई तू राजा बन गया है, इतने ऊपर आ गया, अब तो तू सही हो ले। बोले ऐसा है, ये इस जनता का भाग्य यही है, अगर इनका अच्छा होना होता तो बात तेरे ऊपर क्यों ना बैठता। तो ये चुनाव है, ये जनतंत्र का बाज उड़ रहा है और आप लोगों को ही ये बात बैठाना है जिसके ऊपर बैठाना है। जिस व्यक्ति के ऊपर जिस ये बात बैठाएंगे वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और हम यहां सबको जानते हैं, सबका स्वभाव जानते हैं। काम जहां तक करने की बात है, काम इस बात की शक्ति करेगी। प्रेसिडेंट अपने में कुछ नहीं हो सकता, अगर ये बात साथ नहीं देगी प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, कितना ताकतवर आदमी बन जाए। और बात साथ होगी, जिसके भी साथ बात होगी, जिस प्रेसिडेंट के साथ, वो प्रेसिडेंट आपका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ला सकता है। और मैं यहां से वादा कर रहा हूं, जब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा कोई भी सरकारी पद नहीं लूंगा, क्योंकि सरकारी पद कहीं ना कहीं हमें कमजोर करता है। रही चुनाव चला जाएगा, हम लोग यहीं रहेंगे। अगर आपने मुझे चुना तो निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि हमने गलत प्रेसिडेंट चुना या ये प्रेसिडेंट कुछ करेगा नहीं। प्रेसिडेंट पहले भी करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बात आज ही नहीं। हर वकील और जूनियर साथी जितने हैं मेरे सुन लें, मैं पूरे कोरोना काल में यही रहा, जबकि जिला मेरा मुजफ्फरनगर है। मैं एक दिन नहीं गया, जिस साथी ने भी मेरे से कोई समस्या कही, मैं उसी साथी की समस्या मैंने सुन ली। जहां तक मेरी हैसियत है, हैसियत से बात में भी नहीं जा सकता। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हूं। कोई भी समस्या, निजी समस्या हो, वैसी समस्या हो, जो भी समस्या जहां तक मैं कर सकता हूं, बार की मदद से या अपने खुद की मदद से, वो मैं करूंगा। और जो मुख्य समस्या है आज जो मैं देख रहा हूं, वो फाइलिंग की है। जो फाइलिंग के रूल्स ये चेंज हुए,
फिर एजेंसी पहले होती थी, तो इस एजेंसी जब हम लगाते थे तो कुछ मुंशियों को मिल जाता था, एक उनके अलग से इनकम हो जाती थी, क्योंकि मुंशी भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो एजेंसी बंद हो गई। वहां जाते हैं, मैनेजर करते हैं, स्लिप देते हैं, वो कब केस आएगा कुछ नहीं पता। बार बेंच के संबंध क्या इसीलिए है कि सिर्फ बार ही सम्मान करे, क्या बेंच का कोई कर्तव्य नहीं है कि वो भी बार का सम्मान करे? और अगर टकराने की नौबत आएगी टकराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेलड़े तो मिलेगा ही नहीं, कुछ लड़ना पड़ेगा। कब तक बचेंगे लड़ाई से? नहीं बच सकते। और लास्ट में, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उनको पार लगाते हैं। Thank you very much, Mr. Tyagi. Now I will request Mr. Parikshit Saini, who is already there. Please welcome Mr. Parikshit Saini. Honorable Advocate General, Senior Fellow Advocates, and my fellow colleagues. I think in 19 years, no introduction of myself is required by you. The first and foremost pain which we are feeling these days is listing of cases. Urgency application system has been abolished and the management system has been started. And that pain is daily I am having that pain, and that looking after you, you are also facing the same pain. That abolished system shall be started again. Second thing, we don't even have a safe hygienic washroom for our ladies and gentlemen. There shall be. Secondly, another thing is that for the last 1 year we are facing corona. Everything has gone virtual and our bar does not even have a very high speed Wi-Fi connectivity. We are dependent upon the Wi-Fi connectivity of the High Court, which does not open other website except this High Court website. Again, I am there with you all, fellow colleagues, from 10 a.m. to 4 p.m. in the corridor of the court. There shall be a regular rotation of the jurisdiction of the courts, which is required. हमने देखा लास्टली बहुत दिन तक एक ही जुरिडिक्शन चलता रहा, एक ही कोर्ट एक ही जुरिडिक्शन को कैरी ऑन करती रही. There shall be a regular rotation of the benches as regards the jurisdiction is concerned. तीसरा, एक हमारे यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी बहुत खराब है, जिसके लिए हमें इधर उधर जाना पड़ता है. एक हमारे पास एक ऊपर कैंटीन है जो आई कैन नॉट से सेफ और हाइजेनिक. दूसरा, टू गिव रिस्पेक्ट टू द सीनियर एडवोकेट्स ऑफ दिस कोर्ट, वी शैल हैव अ सेपरेट प्लेस फॉर आवर सीनियर एडवोकेट वेयर दे कैन सिट and meet the fellow colleagues. दूसरा, मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे, मैं आप सबके बीच में हूं 19 साल से, आप ही के साथ कोर्ट में ही रहता हूं. मेरे से मिलने के लिए किसी को बार ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा. मैं आपके साथ 10 बजे से 4 बजे तक कोर्ट के कॉरिडोर्स में रहता हूं. आपकी कोई भी समस्या होगी वो वहीं दूर करने की कोशिश की जाएगी. और जो फाइलिंग के इश्यूज आर मेड सो कॉम्प्लिकेटेड इन लास्ट 52 months, this shall be made complicated only after the consultation of the bar. ये फॉन्ट होगा, ये पेपर का साइज होगा, ऊपर 2 इंच होगा, नीचे 4 इंच होगा, लीगल पेपर होगा, A4 होगा, दोनों साइड होगा. दोनों साइड पेपर अगर यूज करेंगे तो हर एडवोकेट को 50-50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, क्योंकि जो प्रिंटर की कॉस्ट है वो 35,000 ऑलमोस्ट से स्टार्ट होती है. जूनियर्स तो कर ही ना पाते. तो दीज जो इश्यूज फाइलिंग को लेकर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए, जिसे हम सब रोज फील कर रहे हैं. प्लस उस चीज से आदी नहीं हो पाए कि कैसा पेपर होगा, ऊपर कितना होगा, 17 इसका फॉन्ट होगा, 15 इसका होगा, ये उसकी लैंग्वेज का कैप्शन होगा. दीज ऑल थिंग्स शैल बी मेड, थोड़ी फ्रीली करी जाए, थोड़ा फ्रीली हो, इजियर हो. और पढ़ना ही तो है कागज को,
किसी भी फोन में पढ़ लिया जाएगा वो। टाइम्स रोमन की रिक्वायरमेंट क्यों? तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बार के साथ कंसल्ट करके ही हाईकोर्ट को इंप्लीमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। और इससे एकदम समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हमने फेस करा। जिनके पास पुराने कागज रखे थे वो क्या करेंगे? इस तरह की समस्याएं जो हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से ही आगे कुछ होगा। सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार जो भी वो कहेंगे उसी अनुसार करा जाएगा। जो कुछ भी फर्दर इंप्रूवमेंट होंगे उसके लिए आप सब फ्री होंगे मुझे बताने के लिए, मेरी मेंबर्स ऑफ द बार को। सो आई सम अप दिस। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Request the last candidate of the presidency, Mr. Prabhakar Joshi. Mr. Prabhakar Joshi is there. Please welcome Mr. Prabhakar Joshi. सभा कक्ष में उपस्थित मुख्य चुनाव अधिकारी, बार के अध्यक्ष माननीय श्री पूरन सिंह बिष्ट जी, महासचिव जयवर्धन कांडपाल जी और हमारे प्रदेश के महाधिवक्ता माननीय श्री एस.एन. बाबुलकर जी। अब मैं सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का नाम लेने में ही मेरे 7 मिनट का समय निकल जाएगा। तो सारे सभा में उपस्थित सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं, हमारी महिला अधिवक्ताएं, हमारे जूनियर, हमारे साथी, सभी को मैं इस मंच से सबका अभिनंदन करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। जहां तक समस्याओं का सवाल है, वो हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग से देखते हुए आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा, मैं अपनी सारी पुरानी बारों को, फाउंडर बार से लेके और आज तक की बार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर किसी बार ने अपने स्तर से इस बार को और इस हमारी बार को इस स्थान तक पहुंचाया। चैम्बर बनवाए, हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई। आज हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। विकास को ये नहीं कि हमने बैल दवाई और विकास शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं अदालत में क्या हो रहा है, आपके सबके सामने है, कहने की जरूरत नहीं। अब ज्यादा समय नहीं, समय की भी एक सीमा तय की गई है और उसके लिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि हर चीज की समय सीमा तय होनी चाहिए, चाहे काम की हो, चाहे वकालत की हो, चाहे किसी चीज की भी हो। समय सीमा के अंतर्गत ही किए गए काम ही सार्थक होते हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात मैं कहूंगा चैम्बर्स की। मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि चैम्बर्स की कहानी जो शुरू हुई थी वो हमारे प्रदीप कुमार चौहान साहब की एक रिट हमने दाखिल करी, जिनके साथ 105 अधिवक्ता और जुड़े, उनकी रिट करी गई। उसमें हमारे सारे सीनियर अधिवक्ताओं ने, सारे जूनियर अधिवक्ताओं ने सबको साथ लेके अदालत में रिट करी, जिसपे 21/12/2018 को 20/12/2018 को फाइल किया गया और 21/12/2018 को कोर्ट पे आके उसमें कई ऑर्डर्स पास किए गए। 18 में जब ये रिट पिटीशन दाखिल हो गई तो उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हुआ। तो हम लोग बड़े धोखे में रहे कि शायद ये हमारे ही चैम्बर बन रहे हैं। जब पता करने गए तो पता चला कि साहब वो तो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रूम बन रहा है, सर्वेंट क्वार्टर बन रहे हैं। हमने कहा अच्छा, हमसे धोखा, मतलब हमसे अदालतें चलेंगी। भाई बार अगर अदालत के अंदर नहीं जाती है तो कोई जज साहब ऑर्डर करने बैठ के करे। बार हर बार का मेरे कहने का मतलब ये था कि हर बार के व्यक्ति ने उस पर इंटरेस्ट लेना चाहिए। भाई हमको है, सभी सीनियर अधिवक्ताएं हैं। जब 2007-8 में हम चैम्बर मिले थे, हम भी उस समय चैम्बर को हमको भी उपलब्ध हो गए थे, तो हमारे साथ के जो समकक्षी थे उनको भी उपलब्ध हो गए थे। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि जो मेरे साथ वकालत का पेशा शुरू करने के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार में कहो, चाहे हाईकोर्ट में कहो, प्रैक्टिस करने आए थे, आज उनके पुत्र पुत्रियां यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ गई है। उनको देख के दुख होता है मुझे। मैं
20/12/2018 से इस फाइल के पीछे लगा हुआ हूं। मैं रोज मेंशन भी करने जाता हूं, आप लोगों के सामने है। उसके बाद मैं ऑनरेबल जस्टिस शरद शर्मा जी का इस मंच से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि वो हमारे बीच से गए। उन्होंने के सामने जब हमने समस्या रखी तो उन्होंने कहा बेफिक्र रहिए, मैं बार के साथ हूं। एक रीजन ऑर्डर पास किया गया और उसमें इनके द्वारा हमारे महाधिवक्ता साहब मौजूद थे कोर्ट के अंदर, और उसमें उनसे अंडरटेकिंग ली गई। इंजीनियर को बुलाया गया, उनसे कहा गया अंडरटेकिंग दीजिए, आप कब तक काम शुरू करेंगे? उन्होंने कहा साहब मार्च से काम शुरू करेंगे। हम शांत हो गए, हमने कहा ठीक है, आदेश से कोर्ट का आदेश से करेंगे, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेगी। जब तक कि इनके डंडा ना करो, जब तक हम इसके लिए संघर्ष नहीं करें, हमको इनके पीछे ऐसे लगना पड़ेगा जैसे हम कभी अपने मुकदमे को तैयार करने के लिए रात पर चूसते हैं। इस तरह हम अपने चैम्बर के लिए लड़ना पड़ेगा। सब बात हुई, ऑनरेबल जस्टिस शरद शर्मा जी ने इसका उसमें दिया। उसके बाद आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी जी के अदालत में मुकदमा चला, तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं भी इसी बार से आया हूँ, आपके चैम्बर में बनवाने जाऊंगा, मैं बनाऊंगा इस चैम्बर को। और उन्होंने कहा 6 महीने के भीतर काम शुरू होना चाहिए, और ये 6 महीने के अंदर मुझे कंप्लीट चाहिए। हमने कहा साहब इस मुकदमे को है आप बोर्ड पे रखिए, हर 15 दिन में इसको बोर्ड पे रखिए, आप ही के दिशा निर्देशन पे, आप ही के दिशा निर्देशन पे हम इसके काम को करेंगे, और आप ही इस पर मॉनिटरिंग का काम और एक हाईकोर्ट करेंगी, ताकि हमको जल्दी से जल्दी चैम्बर मिले। और हमारे जो अधिवक्ता भाई बाहर टहलते हैं, कभी इधर चाय पीते हैं, कभी उधर चाय पीते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। काश आप सोचिए उनके बाद चैम्बर होता तो आज अपने चैम्बर में बैठते, अपना कंप्यूटर देखते, अपना वर्क वो देखते, सब कुछ देखते, बाद में डिस्कशन करते, मुकदमे तैयार करते, लाइब्रेरी में जाते, लेकिन कुछ नहीं उनके पास, उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं। कई बार यहाँ पर जब मुकदमा मेंशन हुआ, मैंने कई सीनियर अधिवक्ताओं से कहा, मेरे हाथ जोड़ के कहा मेरे साथ चल दीजिए, और कई लोगों ने मेरा साथ दिया। चले, ये लंबी चौड़ी बात, ये लड़ाई जारी रहेगी, और मैं वादा करता हूँ कि आपने अगर मुझे एक बार मौका दिया तो मैं इस सोमवार से ही मैं इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा कि ये 6 महीने। दूसरी बात, अब जहां का बेंच का व्यवहार है, बेंच का व्यवहार आप देख रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं ये नहीं चलेगा। हमने आपको लॉ बाउंडेड कोर्ट से लॉ मेकिंग कोर्ट में बैठाया है, तो आप आज मजिस्ट्रेट बन के हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, तहसीलदार बन के आप मुकदमे को डिसाइड करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? स्टॉप ऑर्डर होता है कोर्ट का, उसकी एक मान्यता होती है। हम पुराने लोगों को मालूम है, जब कोई स्टॉप ऑर्डर हो जाता था तो उसके लिए उस स्टॉप ऑर्डर को रिकॉल कराने के लिए हमको एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी। आज 3-3, 4-4 स्टॉप ऑर्डर पास हो जा रहे हैं, उसके बाद देखो तो 6 हफ्ते का काउंटर का टाइम, 379 चाइल्ड मजिस्ट्रेट जिसको कभी हमने हाईकोर्ट नहीं भेजा, हम इसी कोर्ट में करते थे। इसी के साथ and Mr. Vikas Bahuguna would be the third number. So I would request Mr. Jagdish Singh Best, please come on the stage and address the gathering. Mr. Jagdish Singh Best, please welcome Mr. Jagdish Singh Best. थैंक यू रावत जी। आदरणीय CRO साहब एवं उनकी टीम, आदरणीय एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल यूपी, प्रेस, मेरे सीनियर अधिवक्तागण, मेरे सम्मानित साथी और मेरी मातृशक्ति, आप सबका इस चुनावी बेला में स्वागत है, अभिनंदन है। इस मां सरस्वती के प्रांगण में अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि इस चुनावी वर्ष 2021 के लिए मैं जगदीश सिंह बेस्ट महासचिव पद का प्रत्याशी हूं और आपके प्रेम एवं मत का आकांक्षी हूं। मित्रों, जैसा कि मेरे सीनियर अधिवक्तागण जिन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए उन्होंने अपनी अपनी इस बार की समस्या से आप लोगों को अवगत कराया, मैं भी आपको उन समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इससे पहले भी पदाधिकारी जितने भी समय समय पे जितने पदाधिकारीगण रहे
उन्होंने अपना प्रयास किया उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, और वो हमेशा अपने स्तर से उन्होंने जितना भरसक प्रयास करते थे उन्हें किया, और समस्याओं का समाधान बहुत कुछ हुआ। और जिस सिटिंग प्लेस में आज हम बैठे हैं उन प्रयासों का ही परिणाम है कि हम इस सभागार में आज बैठे हैं। किंतु मौजूदा परिस्थिति में कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि अधिवक्ता चैम्बर्स का। अभी भी इससे पहले भी बात हुई अधिवक्ता चैम्बर्स के बारे में, और इस संबंध में समय समय पर प्रयास किया गया, और पूर्व कार्यकारिणी ने भी इस बारे में जो प्रयास किया वो सराहनीय है। और साथ ही साथ बेंच के ध्यान में भी ये बात आई और ये मामला विचाराधीन भी है, और दोनों की मौजूदगी से जो ये प्रयास है और निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया है, यह बहुत सुंदर बात है। और जब मैं आपसे वादा करता हूं, जगदीश सिंह बिष्ट को अगर आपका प्रेम मिला और सहयोग मिला, वर्ष भर के अंदर ये चैम्बर्स का निर्माण होगा और मेरे छोटे भाइयों को चैम्बर्स का अलॉटमेंट होगा पात्रता के अनुसार। और मैं यहाँ से ये भी वादा करता हूँ, जिस छोटे भाई को अगर कहीं सिटिंग प्लेस की जरूरत है तो मेरा चैम्बर नंबर 39 है, वो वहां आके अपने क्लाइंट को डील कर सकता है और ब्रीफ उनसे ले सकता है। मैं अपना चैम्बर उसको देने के लिए तैयार। दूसरी बात है, एकोमोडेशन की समस्या है, वो अपने स्थान पे बनी हुई है, उसके लिए भी हमें प्रयासरत रहना है। पार्किंग की समस्या है, जिस हिसाब से अधिवक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो पार्किंग की समस्या हमारे लिए निरंतर एक सरदर्द बनती जा रही है। जो नीचे ये BSNL के बगल में जो ग्राउंड है वो हमको पार्किंग के लिए लेना पड़ेगा, अदरवाइज पार्किंग की समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। पूर्णतः उस फील्ड को हमको ऑक्यूपाई करवाना पड़ेगा। उसके लिए जगदीश सिंह बिष्ट आप लोग की मदद से उस कार्य को करवा के रहेगा। तीसरी बात, एक कंटिंजेंसी फंड की मैं चाहता हूं कि एक कंटिंजेंसी फंड हम तैयार करें, जिसमें हम अदर रिसोर्सेज से, सरकार से और विभिन्न संस्थाओं से हम फंड एकत्रित करेंगे, और कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। सीनियर एडवोकेट से निवेदन करेंगे, और जिस अधिवक्ता की सामर्थ्य होगी वो सामर्थ्य के अनुसार एक कंट्रीब्यूशन करेगा। उस कंट्रीब्यूशन फंड से हम इमरजेंसी केस में, जब किसी अधिवक्ता की कोई परेशानी होती है, अधिवक्ता के साथ साथ उसका परिवार भी सफर करता है, तो उस कंटिजेंसी फंड को वहां पर यूज किया जाएगा। साथियों, अगर आपका मत और आपका सहयोग, आपका प्रेम मुझको मिला, तो मैं इस बात को आपके समक्ष आप कोई बार के लिए इसको करके दिखाऊंगा। मित्रों, उसके बाद अगली समस्या है मेडिक्लेम की। इस बारे में मैं पूर्व कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने SBI लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का कैंप यहां पर लगाया। उसके बाद उन्होंने इस बारे में मत नहीं बन पाया, लेकिन ये मेडिक्लेम की पॉलिसी को हमको बहुत सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि किसी के साथ भी समस्या आ सकती है हम लोग के, तो इसको हमको पालन करवाना पड़ेगा, और एक ठोस पॉलिसी हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल करके यहाँ पर अप्लाई करवानी पड़ेगी। जूनियर एडवोकेट्स की बात, जूनियर एडवोकेट्स की समस्या है, उनको फाइनेंशियली दिक्कत आती है। जब स्टार्टिंग में जब हम आए थे और उनको नॉलेज भी नहीं होती, हम जब जूनियर एडवोकेट्स के तौर पे आए थे, हमें यही नहीं पता था कि पास ओवर क्या होता है। तो जूनियर एडवोकेट्स के लिए एक हेल्पिंग डेस्क होना चाहिए, और उनको फाइनेंशियल एड, अगर हम कहीं से ये फंड एकत्रित करने की जहां तक बात है, जो ये सभागार बना है उसके लिए हमने जब फंड एकत्रित करवाया था, हमारे पूर्व कार्यकारिणी जितने पदाधिकारी थे, सेंटर से भी फंड एकत्रित करके लाए थे। मुझे याद है जो चैम्बर्स बने, स्टेट तो स्टेट, सेंटर से भी फंड एकत्रित, तो वो बार की ताकत पे डिपेंड करता है कि वो फंड कैसे जनरेट करती है। तो साथियों, जगदीश सिंह बिष्ट इस मंच से ये वादा करता है कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 2 साल के लिए उनको फाइनेंशियल एड मिलेगी हर मंथ। बार की सामर्थ्यता के अनुसार उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड दी जाएगी, ताकि वो अपने फाइनेंशियल एड उनको मिल सके। और दूसरा, बार और बेंच की मदद से एक प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, ताकि जूनियर्स को उनको हेल्प मिल सके, किस तरह से कोड क्राफ्ट है, किस तरह से एटिकेट्स हैं, सीनियर और जूनियर्स के बीच में जो एटिकेट्स होते हैं, कोर्ट्स में क्या एटिकेट्स होते हैं, वो भी हमको डेवलप करना है। और
उसके अगली समस्या है लेडी एडवोकेट्स। लेडी एडवोकेट्स, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए यहाँ से खुशी हो रही है कि हमारी मातृशक्ति में वृद्धि हुई है और हमारे इस प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा लेडी एडवोकेट्स इस प्रोफेशन में आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। इस प्रोफेशन में वो आई और उनके लिए जो कॉमन रूम की व्यवस्था है अब वो छोटा पड़ गया है। उस कॉमन रूम को बड़ा कॉमन रूम की हमको आवश्यकता है और उसमें टीवी फैसिलिटीज, वॉशरूम फैसिलिटीज जो भी हैं उसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अगर आपका सहयोग और प्रेम मिला तो जगदीश सिंह बिष्ट इसको करके दिखाएं। और किसी अधिवक्ता के सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो उस स्तर पे इस बार का अगर मेरे को सहयोग मिला, पूर्व सीनियर्स के अनुभव और जूनियर्स के उत्साह के साथ मैं ये दावा करता हूं किसी भी अधिवक्ता के सम्मान से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और बहुत सी समस्याएं हैं, कैंटीन फैसिलिटी हैं, अदर भी हैं। तो मैं आपसे फिर से पुनः एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मेरे को बार बार कहा कि आपकी लेट एंट्री है। 2003 से 2020 तक मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो बार के लिए ये कहना सही नहीं है कि आपकी लेट एंट्री है। आप जानते हैं मैं आपके बीच का आदमी हूं और इतने साल से आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर यही ऐसी व्यवस्था है तो फिर क्यों गैदरिंग, फिर क्यों पार्टियां, ये सब है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चुनाव बेला में महासचिव पद के लिए मैं आपके प्रेम एवं मत का आकांक्षी हूं। Thank you very much, Mr. Best. Now, the second candidates in the Secretary General's addressing, Mr. Pramod Kumar Belwal. Please welcome Mr. Pramod Kumar Belwal. सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय मुख्य चुनाव अधिकारी जी एवं उनकी टीम, यहाँ पर उपस्थित एडवोकेट जनरल साहब, सीनियर अधिवक्ता गण, सीनियर महिला अधिवक्तागण एवं मेरे साथी अधिवक्तागण, मैं महिला अधिवक्तागण का मैं हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अब वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जिसका हमारे पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी ने बहुत इंतजार करवाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना इंतजार कराया, हमें इतना मौका दिया कि हम जो है आपकी सेवा के लिए यहाँ पर खड़े हों, कन्विंसिंग हो। मेरी आप सबसे निवेदन है कि मैं सचिव पद पर आपके सामने खड़ा हूं और आपसे वोट की विनती करता हूं कि मुझे सचिव पद पर आप जो है अपना अमूल्य मत देकर विजय बनाएंगे। मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि सचिव पद पर उसी योग्य व्यक्ति को आप जो है मत देंगे, उसको सचिव पद पर अग्रसित करेंगे, उसको सचिव पद पर जो इसके योग्य होगा, जो इसकी गरिमा को समझेगा। मैं भी जो है 20-21 साल की प्रैक्टिस होगी, अब मैंने हिम्मत की कि मैं इस सचिव पद के लिए और इसकी गरिमा को समझा हूँ और उसके लिए मैं जो है आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ। अब समस्या तो सबने मेरे बड़े भाइयों ने, अध्यक्ष महोदय, जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने बता दी है, लेकिन मैं इस मंच के द्वारा एक जो कोविड काल में जो सबसे बड़ी समस्या हुई है वो जूनियर अधिवक्ताओं को, उन जूनियर अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। अगर आप सबका सहयोग हुआ और आप सबका साथ मुझको मिला तो मैं इस मंच के द्वारा ये वादा करता हूं कि जिन जूनियर अधिवक्ता जिनकी 5 साल तक की प्रैक्टिस है उनका 1 साल का वार्षिक शुल्क माफ करूंगा। अब ये तभी संभव होगा जब ये आपका मेरे को सहयोग मिलेगा।
और ऐसा नहीं है कि मैं ये आर्थिक नुकसान जो होगा वो जो है बाढ़ का वो मैं होने दूंगा, ऐसा नहीं है। उस आर्थिक नुकसान को मैं यहाँ से विधायक नीति, सांसद नीति से भरपूर करूंगा, ये मैं आपको विश्वास और वादा करता हूँ। बाकी समस्याएं जैसे पार्किंग की समस्याएं हैं, मैं जब कन्वेंसिंग कर रहा था तो मैं कई सीनियर अधिवक्ताओं से मिला, अपने साथी अधिवक्ताओं से मिला, तो उनकी मेन समस्या जो आज की डेट में थी वो पार्किंग की थी। उस पार्किंग की अधिवक्ताओं को मेट्रोपोल में पार्किंग अवेलेबल है, बट मेरा ये कहना है कि वहां से अधिवक्ता गाड़ी खड़ी करता है, पैदल चल के आता है, फाइल होती है, तो उसे दिक्कत होती है। और हमारी जो ये यहाँ पे पार्किंग है पीछे चीफ जस्टिस बंगले के नीचे, वहां पे हाईकोर्ट स्टाफ की गाड़ियां परमानेंट पार्क है। अगर आपका सपोर्ट मिला और आपका सहयोग मिला तो मैं वो हाईकोर्ट स्टाफ की गाड़ियों को वहां से हटवा के उन्हें अपना हाईकोर्ट मेट्रोपोल की जो पार्किंग है वहां पे अवेलेबल कराऊंगा, ताकि किसी भी अधिवक्ता को वहां पे आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो और हमेशा अवेलेबल पार्किंग मिले उन्हें, जो कि हमारे कोर्ट के नजदीक भी होगी। तीसरी चीज हेल्थ इंश्योरेंस। मैं भी कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का वकील हूँ, तो मैं आपको ये इस मंच से ये वादा करता हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर हर अधिवक्ता का ग्रुप इंश्योरेंस में करके दिखाऊंगा और हर अधिवक्ता हैरान करता हूँ। यहाँ से समस्या और भी है इसमें, जैसे कि ऊपर हमारे चैम्बर में वॉशरूम की, टॉयलेट की, वो टॉयलेट ऐसा लगता है जैसे किसी बस स्टैंड से भी टॉयलेट खराब है, ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ है। मैं चाहता हूं कि उसको पूरा तोड़ा जाए, उसे नया वॉशरूम बनाया जाए जिसमें पानी की पूरी व्यवस्था हो और बड़ा टॉयलेट बनाया जाए। तीसरी कैंटीन है, उसका भी हम प्रयास करेंगे अगर आप सबका सहयोग हुआ। चौथा है रोस्टर, सबसे मेन प्रॉब्लम है रोस्टर। कहते हैं कि यहाँ 2-3 महीने जो है एक ही माननीय जज साहब के यहाँ जुडिक्शन रहता है। अगर आप सबका सहयोग मिला तो मैं इस चीज का भी वादा करता हूँ इस मंच के द्वारा कि मैक्सिमम एक टाइम पीरियड के अंदर पूरा रोस्टर चले। बाकी एडवोकेट के सम्मान में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। कोई जूनियर अधिवक्ता पे कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए मैं हमेशा 24/7 टाइम के लिए खड़ा हूँ। जब मर्जी, रात हो, दिन हो, सुबह हो, कुछ भी हो, कभी भी मेरे को फोन करके मेरे से मदद ले सकता है। मैं हमेशा उन्हें यह आश्वासन देता हूँ कि मैं उनके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Delwa. And now, the last but not the least, Mr. Vikas Bahuguna, the youngest candidates of the General Secretary. I would request him, please welcome Mr. Vikas Bahuguna. आज इस आम सभा में उपस्थित लैंडेड एडवोकेट जनरल सर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रवि जी, उनकी टीम, वर्तमान कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, परम पूज्य वैश्य अधिवक्ता एवं मेरे अधिवक्ता साहब, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि आज इस कोरोना काल में हम लोगों ने इस चुनाव को आज तैयार कर लिया है। चुनाव आज हुआ है। आज मुझसे आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि अभी आपके सिर्फ 10 साल की 12 साल की प्रैक्टिस हुई है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ साल मैंने ट्रायल कोर्ट में काम किया, उसके बाद 21/11/2011 को मैंने हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और उसके बाद मुझे इस हाई कोर्ट से बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिला है। और आज के दिन जो मेरी पूंजी ये है कि हर एक अधिवक्ता को मैं बाय नेम जानता हूँ और उनको मुझे पता है कि उनकी क्या क्या समस्या है। यही मेरी पूंजी है। मैं बहुत नया वकील हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि इस हाई कोर्ट में कौन अधिवक्ता कहाँ पे रहता है, किसी का परेशानी है। और मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का कि मैं जो भी इनकी समस्या होगी मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा। आज के दिन अगर कोविड-19 में इस समाज को दिक्कत हुई है, वो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे जनरल समाज को। सब लोग जानते हैं कि मार्च 2020 से लेके फरवरी 2021 तक हमारा हाई कोर्ट बंद रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती रही।
और सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना काल में किसी को दिक्कत हुई है वो है हमारे जूनियर एडवोकेट्स, ओथ कमिश्नर्स। मैं बधाई दूंगा हमारे निवर्तमान अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को, जिन लोगों ने, मेरा एक मन में विचार आया था कि हम लोग एक फंड एकत्रित करते हैं सीनियर एडवोकेट्स के बाद। सब लोगों ने एक फंड इकट्ठा किया, उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत छोटी राशि हर एक छोटे जूनियर एडवोकेट्स को दी। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो जो धनराशि थी वो कोई बहुत ज़्यादा धनराशि नहीं थी। मुझे इस चीज़ का अभी भी एक मलाल है कि अगर हम कुछ चाहते करना तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं आप लोग मुझे सचिव चुनते हैं तो मैं राज्य सरकार से मिलकर, हमारे यहाँ सर बाबुलकर सर बैठे हैं, रावत जी बैठे हैं, एक ऐसा फंड तैयार करेंगे कि कभी भी जिंदगी में किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस फंड से हमारे जूनियर एडवोकेट्स को किसी को देते हैं। मैं पिछले 10-11 साल से हाईकोर्ट में हूँ। मैंने ये कहीं ना कहीं देखा है कि हमारे बार और बेंच में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की कमी है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है संवाद। अगर हम लोग आपस में रेगुलर संवाद करते रहेंगे तो कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर रेगुलर हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण हमारी बार में आते रहेंगे, हमारी समस्याएं सुनते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कभी भी हमारी समस्या का निदान अड़चन होता रहेगा। और मुझ जैसा जो वकील जिसके पास आज के दिन चैम्बर नहीं है, मुझे लगता है कि आज अगर मैं कोशिश करूंगा कि जब तक ये चैम्बर नहीं बनते हैं तो कम से कम हमारे लिए 1-1.5 साल की कुछ जगह हो जहाँ पे अपना सामान बस्ता रख पाए। आज के दिन हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में किताबें बहुत चुकी हैं, वहाँ जगह नहीं रहने के लिए। मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग मुझे सचिव चुनते हैं तो मैं इस जहाँ पे हम इस हॉल में खड़े हैं और हमारी जो बाकी लाइब्रेरी है मैं उसका एक्सपेंशन करवाऊंगा। मैं इसको एक थोड़ा सा आधुनिक तौर पे हमारी बाकी लाइब्रेरी रहेगी और हमारा एक कॉन्फ्रेंस होगा। और समस्याएं बहुत सारी हैं, चाहे महिला अधिवक्ताओं का कॉमन रूम हो, चाहे पानी की समस्या हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप सम्मानित अधिवक्तागण मुझे चुनते हैं तो मैं इन समस्याओं को आप सब सीनियर एडवोकेट के साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि आप हम लोग समस्याओं को ना कर पाएंगे। बाकी एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है, वो है अर्जेंसी एप्लीकेशन। जो यहाँ पे हमारे वकील फौजदारी के हैं, वहीं मुझे पता है कि उनकी जो लिस्टिंग की जो एप्लीकेशन हैं कम से कम 100, 150, 300, 400 की भी पड़ी हुई है और कोई भी केस लिस्ट नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम अर्जेंसी एप्लीकेशन फिर से शुरू हो पाए। और आखिरी में मैं बात करना चाहूँगा, चुनाव आएगा जाएगा, 10 तारीख को मेरे बड़े भाई जगदीश बिष्ट जी, मेरे बड़े भाई प्रमोद बेनीवाल जी सेक्रेटरी बनेंगे या मैं बनूंगा। पर मैं आपसे वादा करता हूँ 10 तारीख के बाद कभी भी विकास बहुगुणा चाहे कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो, आपके लिए खड़ा है और आपके लिए खड़ा रहेगा। Thank you very much, Mr. Vikas Bahuguna. And at the addressing of last addressing of Mr. Vikas Bahuguna, now the addressing of the candidates is over. Now, ladies and gentlemen, I must thanks to all the members of the bars, the Honorable Advocate General, the Chief Standing Counsels, all the senior advocates, and ladies and gentlemen, one more request is to the Honorable Member of the Bar is now then from tomorrow 9 to 5 there is an election, and I would request all the Honorable Members kindly extend your all the indeed cooperation to the committee as you have cooperated till date. I hope and expect that the election would be very peace and calm, and I would be requesting you, whatever the norms are being fixed by the committee, bringing their identity card or whatever, filling of the forms and all that, I would heartfully request you and gratefully I would be very much grateful for that if you kindly accept those terms and please follow it. And from 9 o'clock tomorrow morning there will be voting till 5 o'clock. Thank you very much indeed for your participation.